Hello students, welcome to the class, and today now we will discuss here about the ideal and non-ideal liquid solution and also the azeotropes. So first, what the meaning of the ideal solution? तो कोई भी सॉल्यूशन उसे हम आइडियल तब कहेंगे जब वो स्ट्रिक्टली राउल्ट्स लॉ को ओबे करे एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, राइट. तो वट एवर माइट बी द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, if it your obeys the Raoult's law strictly, then the solution is said to be ideal. अब जैसे हमारे पास मान लो लिक्विड सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है और दोनों ही वोलाटाइल कंपोनेंट हैं, तो पी ए मस्ट बी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए एंड पी बी मस्ट बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, एंड द टोटल प्रेशर will be as your PA plus PB. So now what the your characteristics of an ideal solution? what it your the properties have? तो यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज what the interaction was present earlier in their pure state. It means interaction of A B, that is solute and solvent interaction, is same as that of solvent solvent or solute solute interaction. Okay, it means whenever we are mixing the solute and solvent to make the solution, so there is hardly any change in the amount of forces of interaction between them, right. It is your one of the property, and that is the your main property. The second one, both the component must have similar structure and polarity. तो दोनों का स्ट्रक्चर और पोलैरिटी भी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए. उसके बाद में कुछ और भी है. द टोटल वॉल्यूम चेंज ऑफ द सॉल्यूशन दैट शुड बी जीरो. तो इट मीन्स इफ वी आर सपोज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज योर V solvent and volume of the solute V solute, so volume of the solution must be the sum of the volume of solvent and solute both. It means no change in the volume, that is delta V must be zero. In a similar way, whenever the solution is prepared, so for ideal condition there should be no enthalpy change, that is delta H must also be zero. It means during the formation of the solution no heat is absorbed or liberated. So here are the some examples of the ideal solution, like the benzene and toluene, they are forming ideal solution, or it may be ethyl bromide, ethyl iodide. Now here structure and polarity they are similar, so their forces of interaction between them after mixing will also be the same. In a similar way, bromobenzene, iodobenzene, chloromethane, dichloromethane. So these are the examples of ideal solution. Now for next one here, the graphical representation. What will be the total vapor pressure? So in the graphical representation, the PA equal to PA naught into XA and PB equal to PB naught into XB, and this is the total pressure PA plus PB. Now from this relation it is clear here all these pressures are their linear relationship with their corresponding mole fraction. अब इसी को हमने ग्राफ में यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है. ये वेपर प्रेशर है और ये है मोल फ्रैक्शन. तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज 1, इट मीन्स व्हाट, it is in your pure state and no the amount of second component is present. So in that case the total pressure will be the PA naught alone, and when the XA will be 0, so PA will also be 0. यहाँ पर जब XA 0 हो जाएगा तो PA भी 0 हो जाएगा. Okay, and that is your showing a linear relationship. So simply you join with these 2 points with a straight line. So this line will give you the variation of partial pressure of component A with its mole fraction, right. And similarly we may plot the curve for PB, that is partial pressure of component B. तो यहाँ पर XB 0 है तो PB 0 हो गया, और इस पॉइंट में XB इक्वल टू 1 तो PB इक्वल टू हो जाएगा PB नॉट. इसको भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया. सो दिस लाइन विल शो दी variation of partial pressure of B with respect to its your
वेरिएशन इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब हमें टोटल प्रेशर निकालना है, तो टोटल प्रेशर विल बी द सम ऑफ दिस टू पी ए एंड पी बी। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया एक्सट्रीम पॉइंट को। सो दिस लाइन विल शो द टोटल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी इन इट्स वेपर फेज। ओके, तो ये था हमारा आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट अबाउट द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जस्ट उसी का रिवर्स वे में हमें बोल देना है कि जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, राइट, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन देम व्हाट इट वाज प्रेजेंट इन देयर प्योर स्टेट। So A-B interaction different from A-A and B-B interaction, and in this non-ideal solution there is a volume change. It means यहाँ पे change in volume will not be equal to 0. तो यहाँ पर volume of solution may be even less than the total volume of solute and solvent, or it may be more. It means some volume change will be there. So delta V should not be equal to 0. अब वो वॉल्यूम सॉल्यूशन का कम होगा या ज़्यादा होगा वो डिपेंड करेगा ए और बी के बीच का इंटरेक्शन। अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस, इट मीन्स डेल्टा वी विल बी नेगेटिव। अगर ये इंटरेक्शन वीक है सो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बिकम मोर, मीन्स डेल्टा वी विल बी पॉजिटिव। In a similar way, there is change in enthalpy also. So when for such a solution, the enthalpy change will also not be 0. There might be the possibility either the energy is your absorbed or it might be liberated. अब इनके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कौन कौन से सोल्यूशन हमारे नॉन आइडियल बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन एंड और द सोल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए हैं। इसके और भी एग्जांपल्स हैं लाइक सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड HCl, सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। सो देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स हियर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो यहाँ पर दो टाइप है। पहला टाइप है द सोल्यूशन विच आर शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, इस तरह के सोल्यूशन में क्या होता है कि सोल्यूशन में सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन वो थोड़ा वीक होगा इन कंपैरिजन टू व्हाट द इंटरेक्शन वाज प्रेजेंट इन AA एंड BB। तो जब इंटरेक्शन वीक हो जाएगा तो हमारा पार्शियल प्रेशर वो अब हर कंपोनेंट का ज़्यादा आएगा व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। सो दैट्स वाई द PA should be more than PA naught into XA. This is your actual partial pressure of component A, and PA naught into XB, it is the calculated partial pressure from the Raoult's law. So actual pressure will always be more than the calculated value. And तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सॉल्यूशन में आने के बाद में A और B के बीच का इंटरेक्शन कम हो गया। इट मीन्स मोर वेपर विल फॉर्म। तो जब वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसी तरह से PB जो एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B, दैट विल आल्सो बी मोर देन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, एंड इन ए सिमिलर वे द टोटल प्रेशर विल बी आल्सो बी मोर देन। अब इसी को हमने यहाँ पर ग्राफ में शो किया हुआ है। ये जो स्ट्रेट लाइन वेरिएशन वो हम ऑलरेडी आइडियल सॉल्यूशन के केस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव डिविएशन का मीनिंग क्या है कि एक्चुअल वेपर प्रेशर इज मोर देन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। सो दिस इज द योर स्ट्रेट लाइन वेरिएशन, इट इज योर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, right, but actually its vapor pressure is more. So it is your at any mole fraction actual vapor pressure is more what we may calculate from the Raoult's law. So this is your showing the positive deviation for PA and PB
and similarly for the total pressure will also be larger than what we may expect from the linear relation of Raoult law. Okay, now यहाँ पर अभी हमने जो बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो चेंज इन वॉल्यूम है, क्योंकि इनका A और B के बीच का इंटरेक्शन वीक हो गया, इट मीन्स क्या होगा, द मॉलिक्यूल विल मूव अपार्ट. तो जब मॉलिक्यूल हमारे दूर दूर जाएंगे तो यहाँ पर डेल्टा V दैट इज चेंज इन वॉल्यूम विल बिकम पॉजिटिव, मीन्स वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी मोर देन द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ओके, एंड दैट इज ड्यू टू द वीकर इंटरेक्शन. और इसी तरह से जब इंटरेक्शन हमारे पास वीक हो जाएगा तो दे विल मूव फार्दर against the your interaction. It means it need some energy to get separated. So that's why in this process the enthalpy change will be positive, means some energy will be absorbed to move the particles apart, right? तो यहाँ पर डेल्टा V भी पॉजिटिव है और डेल्टा H भी पॉजिटिव है फॉर पॉजिटिव जो सॉल्यूशन जो हमारे पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहे हैं. तो यहाँ पर दोनों ही वॉल्यूम चेंज भी पॉजिटिव और एंथैल्पी चेंज भी पॉजिटिव. अब इनके जो एग्जांपल्स हैं जो किस तरह के सॉल्यूशन ऐसा शो करेंगे पॉजिटिव डिविएशन, दे आर एसीटोन एंड द कार्बन डाइसल्फाइड और इथाइल अल्कोहल एंड वाटर. So it was your the first time. In a similar way, the second type of the non-ideal solution, that is solution showing negative deviation from Raoult's law. तो negative deviation कब होगा, जब solution में A और B के बीच का interaction ज़्यादा हो जाएगा than in comparison to what the interaction were earlier present, that is between A and between BB interaction. तो जब A और B के बीच का इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया तो अब इसमें दोनों ही कंपोनेंट की वेपर कम फॉर्म होगी. तो जब वेपर कम फॉर्म होगी तो उनका वेपर प्रेशर भी हमें कम मिलेगा. सो एक्चुअल वेपर प्रेशर इज नाउ लेस देन द वेपर प्रेशर व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ. तो PA भी कम हो गया, PB भी कम हो गया और टोटल प्रेशर विल ऑफ कोर्स इट विल आल्सो बी द लेसर व्हाट वी मे एक्सपेक्ट. अब इसका अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखें तो ये जो डॉटेड लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इट इज़ योर अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ. सो दिस इज द योर वेरिएशन ऑफ द PA अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, बट एक्चुअल प्रेशर इट इज योर लेस. सो दिस इज द योर कर्व दैट इज योर शोइंग द लोअर वेपर प्रेशर. इन ए सिमिलर वे फॉर PB it is the your lower vapor pressure and the line for the total pressure that will be lower than what we are expecting from the Raoult's law. Okay, in this case what happen here, the change in volume will be negative. तो चेंज इन वॉल्यूम क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे. इसका मीनिंग कि सॉल्यूशन में टोटल वॉल्यूम विल बिकम लेसर. तो दैट्स वाई द चेंज विल बी योर नेगेटिव. और जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे सो दे आर कमिंग ड्यू टू द फोर्स ऑफ लार्जर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन. तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी फोर्स ऑफ यहाँ पर जो इंटरेक्शन है इट इज़ नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी वो मॉलिक्यूल क्लोजर आ रहे हैं. तो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है. सो दैट्स वाई चेंज इन एंथैल्पी इज नेगेटिव. तो नाउ यहाँ पे इसको रिमेंबर करना इजी भी है. तो निगेटिव डिविएशन जो सॉल्यूशन शो करते हैं उनमें ये दोनों डेल्टा V भी नेगेटिव, डेल्टा H भी नेगेटिव. और इसी तरह से जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं तो उस केस में डेल्टा V पॉजिटिव एंड डेल्टा H पॉजिटिव. सो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर दिस वन. नाउ हियर द एग्जांपल्स ऑफ दिस नेगेटिव डिविएशन: chloroform and benzene, water and nitric acid, acetone and chloroform. So the next one now we may discuss here, we will discuss here the azeotrope. तो azeotrope का मीनिंग है कि एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर एट ए सम पर्टिकुलर प्रपोर्शन, मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी प्रपोर्शन में, एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में वो दोनों ही लिक्विड दे विल बॉयल एट द सेम टेम्परेचर. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब दोनों ही लिक्विड, जबकि दो अलग अलग लिक्विड के हमने सॉल्यूशन बनाया है
राइट, और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में दोनों ही कंपोनेंट एक सेम टेम्परेचर में बॉयल करेंगे, मीन्स दे आर बिहेविंग दैट एज इफ दे आर द सिंगल कंपोनेंट, राइट। जैसे सिंगल कंपोनेंट में सभी मॉलिक्यूल एट ए टाइम बॉयल करते हैं सेम टेम्परेचर में, तो यहाँ पर भी दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उनका मिक्सचर इस तरह का हो गया कि दोनों ही कंपोनेंट सेम टेम्परेचर में बॉयल हो रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ solution they are called the azeotrope, or it is also called constant boiling mixture, because here both the component are boiling at the same temperature. Now again we are having some types of azeotropic mixture. So first one is your minimum boiling azeotrope. तो minimum boiling azeotrope कब बनेगा? When your binary liquid, binary means when there are the two liquids are mixed, right, when they are showing positive deviation from Raoult's law. तो जब पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो करेंगे, इसका मीनिंग कि एक्चुअल वेपर प्रेशर विल बी हियर द मोर देन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो कम टेम्परेचर में ही इनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, इसीलिए जो लिक्विड है, जो सॉल्यूशन है, दैट विल बॉयल एट ए टेम्परेचर विच इज़ लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द कंपोनेंट सेपरेटली। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, सपोज ए लिक्विड मिक्सचर हैविंग 95.6% मास बाई मास रेशियो प्रेजेंट ऑफ इथाइल अल्कोहल, और उस सॉल्यूशन में 4.4% वाटर है, राइट। सो नाउ दिस solution, this mixture at this composition only, not at any other composition, they will represent a constant boiling azeotrope. तो अब यहाँ पर जो boiling point of हमारे पास अल्कोहल का है वो है 351.1 केल्विन, और boiling point of water is 373.15, right. This is the boiling point of pure alcohol and this is the boiling point of water. But when they are forming the constant boiling azeotrope, so the solution will boil at a temperature that is lower than both these boiling point, and they will boil at a temperature of 351.3 Kelvin. Okay, तो यहाँ पर इस कंडीशन में इथाइल अल्कोहल और वाटर they will behaving like a constituent that is of the pure the single, you may say the single component. Okay. Now जैसे यहाँ पे इनका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, ये टेम्परेचर है, ये है परसेंटेज ऑफ वाटर। तो जब वाटर का परसेंटेज 0, इट मीन्स इट इज़ योर दी प्योर इथाइल अल्कोहल, तो प्योर इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 351.3। अब जैसे जैसे इसमें हम वाटर का प्रपोर्शन बढ़ाते जाएंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ये कम होता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मीनिंग कि यहाँ पर जो वाटर है उनके बीच का, वाटर और अल्कोहल के बीच का जो व्हाट इज़ दैट, यू मे से द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दैट इज़ बिकमिंग वीकर एंड वीकर, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ये कम होता गया। लेकिन इस प्रपोर्शन के बाद में नाउ व्हेन द परसेंटेज ऑफ वाटर इज योर इंक्रीजिंग, again now you may see there is a rise in the boiling point. Okay, it means at this proportion the boiling point is minimum. Okay, it means this is the your azeotropic, this composition is called the azeotropic mixture when the 4.4% of water is present in this solution. So now at this composition the boiling point of this solution is your minimum. इससे अगर कंपोजिशन हमारा परसेंटेज ऑफ वाटर कम हो या ज़्यादा हो, बॉइलिंग पॉइंट विल ऑलवेज बी मोर देन दिस वैल्यू, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. ओके, नाउ द इन अ सिमिलर वे वी मे डिफाइन हियर द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप दे आर shown by the solution which are showing the negative deviation from the Raoult's law, right. तो at a certain specific mass percentage, right, तो they will also form the azeotropic mixture. तो यहाँ पर जो पार्शियल वेपर प्रेशर है दोनों ही कंपोनेंट का
वो कम होगा, राइट। तो जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन भी करना चाहा है। सपोज इफ यू आर हैविंग ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ द 22.2% ऑफ वेट ऑफ HCl, और HCl का बॉइलिंग पॉइंट है 188 केल्विन, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर HCl, एंड वी आर हैविंग 79.8% ऑफ वाटर, और वाटर प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन। ओके, सो this composition of HCl and water, they are forming maximum boiling azeotrope, means इस composition में solution का boiling point इन दोनों के boiling point से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव डिविएशन शो कर रहे हैं। नेगेटिव डिविएशन का मीनिंग कि इनके बीच का HCl और वाटर के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया, राइट। और जब ये इंडिविजुअल थे उस समय उसके कंपैरिजन में उस समय उनका कंपैरेटिवली कम था फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, और सॉल्यूशन में आने के बाद में दोनों कंपोनेंट के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जब स्ट्रांग हो गया तो उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब वेपर प्रेशर कम हो गया तो पहले जिस टेम्परेचर में ये लिक्विड बॉयल हो रहे थे, अब उस टेम्परेचर में इनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, इसलिए ये दोनों ही लिक्विड अब अपने बॉइलिंग पॉइंट में बॉयल नहीं करेंगे। तो इनको बॉयल कराने के लिए हमें इनका वेपर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और जब इनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तभी ये बॉयल करेंगे। इसका मीनिंग कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा आएगा। तो सी हियर, दैट इज योर दी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, द एग्जाम्पल इज योर HCl एंड वाटर। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर और परसेंटेज ऑफ वाटर के बीच में, ये बॉइलिंग पॉइंट के बीच में ये कर्व है। तो जब हमारे पास परसेंटेज ऑफ वाटर 0 है, इट मीन्स इट इज ए प्योर HCl, तो HCl का बॉइलिंग पॉइंट है 188 केल्विन। नाउ इफ़ यू आर गो ऑन एडिंग दी योर वाटर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट नाउ बिकम मोर एंड मोर। ओके, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ता जाएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और आफ्टर दिस परसेंटेज ऑफ वाटर नाउ फर्दर देयर इज ए योर ड्रॉप इन द बॉइलिंग पॉइंट, और व्हेन यू आर हैविंग ओनली वाटर, so that is the temperature 373, it means at this particular proportion you are having the maximum boiling point, and that is 383 Kelvin, and this temperature is more than the boiling point of HCl and the boiling point of water, so that's why it is called maximum boiling azeotrope. Okay, so that's all for the today's class. Thank you.